Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and taking your online classes regularly and learning the assigned task which has been given daily. This is your English grammar class. What we did in our last classes, we have completed the revision of tenses. Alhamdulillah, we have revised all the tenses and now we are moving towards our next topic, which is active and passive voice. Before starting the topic, I would like to check that whether you have done the homework or not. So open your book, page number 13, and tally the work which I have given in the last class. I have given you to translate some sentences. And I hope that you have translated like this. Just check the answers and if they are incorrect, correct it accordingly. Now students, we have to start our new topic, active and passive voice, and in class 7, you have practiced a lot how to convert or how to transform active sentences or active voice into passive voice. Here we have a short revision of active and passive voice, but before starting it, I would like to ask you, do you know what is voice? Yes, voice is a form of verb. It tells us whether the subject of a verb performs or receives the action. Means it tells us that the subject has performed the action or something has been done or something has been performed by the subject. As you know well that voices are categorized into two types, active voice and passive voice. And what is active and what is passive voice? In active voices, subject performs the action, means the doer of an action is the subject. Active voice में क्या होता है? जो doer of the action होता है उसे as a subject लिया जाता है. And in passive voice, subject receives the action. Means the subject is no longer performing the action of the verb. Rather, it's been acted upon by the verb. मतलब कि subject अब doer का काम perform नहीं कर रहा है. जो subject है वो doer of the verb नहीं है. मज़ीद समझाने के लिए let's have an example. My friend paints pictures. How can you say that this is an active voice sentence? ये एक active voice का sentence है. How can you say? Because can you identify the doer of an action? इसमें काम करने वाला कौन है? Yes, my friend is the doer of an action. और यहाँ पर my friend as a subject है. तो अगर doer of the action as a subject हो किसी sentence में, तो उसका मतलब ये है कि वो sentences active voice में है. और अगर receiver of the action means जिस पर काम हो रहा हो वो एज अ सब्जेक्ट लिया जाए. अगर रिसीवर एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा तो मतलब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, यानी डूअर उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट नहीं होगा. ये मेन हिंट है और मेन आइडेंटिफिकेशन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एक्टिव सेंटेंस एंड द पैसिव सेंटेंस. देन इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज working as a subject in a sentence, then it is an active voice sentence. And if the receiver of the action is working as a subject, then the sentence is in passive voice. Okay? Now, we can think that where should we use active voice and where should we use passive voice and what is the need of using passive voice sentences. Yes students, आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा कि जब सेंटेंस की में एक ही बात की जा रही है तो फिर हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दैट व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग पैसिव वॉइस sentences. Okay, active voice is used when we emphasize the doer of an action. और जब हम किस चीज़ को emphasize कर रहे होते हैं? काम करने वाले को. Like if I say my friend paints pictures, यहाँ मैं किस चीज़ को emphasize कर रही हूँ? My friend. Okay.
डूअर को एम्फसाइज कर रही हूँ, और जब डूअर को एम्फसाइज करूँगी तो डूअर को एज अ सब्जेक्ट लूँगी। तो जब डूअर को एज अ सब्जेक्ट लिया है तो मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। बट इफ़ आई वॉन्ट टू एम्फसाइज द एक्शन और द रिसीवर, अगर मैं उस एक्शन को या रिसीवर को एम्फसाइज करना चाहूँगी इंस्टेड ऑफ डूअर, तो मैं क्या करूँगी, मैं पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाऊँगी, ओके, बिकॉज आई हैव टू चूज द रिसीवर एज अ सब्जेक्ट दैन, फिर मुझे रिसीवर को एज अ सब्जेक्ट लेना होगा, ओके। व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन और द रिसीवर, और व्हेन वी वांट टू शिफ्ट द फोकस from the doer to the action or the receiver, then we use passive voices. Second, doer is unknown. When the doer is unknown or unimportant to tell, then we make passive voice sentences. When the doer is unknown, I don't know who is the doer of the action. For example, my mobile phone has been snatched. मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, बट हु स्नैच्ड माई मोबाइल फ़ोन, आई डोंट नो द डूअर, किसने किया मुझे नहीं पता, सो आई हैव टू मेक इट इन पैसिव, ओके। देन आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन द डूअर इज अनइम्पॉर्टेंट टू टेल, व्हेन आई डोंट वांट टू व्हेन आई डोंट वांट टू एम्फसाइज द डूअर, देन वी कैन यूज पैसिव वॉइस. Let's have an example. For example, I broke a glass yesterday, but I don't want to tell my mother that I broke a glass. So, what should I tell? Yes, I would tell my mother that the glass was broken. मैंने क्या बताया, ग्लास टूट गया. I haven't told my name that I have broken the glass. मैंने ये नहीं बताया कि मैंने ग्लास तोड़ा है. तो जब मुझे अपना नाम बताना गैर ज़रूरी लगा तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया. कितने अच्छी जगह पे हम पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ना, ये तो आप लोगों से भी होता होगा. Third one is avoid when I don't same thing when I want to avoid naming the doer. Same thing जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि the house was built in 1970. ये घर बनाया गया, तामीर किया गया 1970 में. I want to tell the date instead of telling the doer कि किसने बनाया. मुझे ये नहीं बताना because it's understood. जब understood होता है और I don't want to tell you the doer, सो आई हैव टू अवॉइड द डूअर. तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको जो पता ही है कि किसने बनाया है, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, तो हम क्या करते हैं, उसको पैसिव में बनाते हैं. एज आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल, द हाउस वॉज बिल्ट इन 1960. एंड वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ आई से मिस्टेक्स वर मेड, गलतियाँ हो जाती हैं, इट्स हैपन, बट आई डोंट वांट टू टेल यू द डूअर, कि किससे होती हैं वो मुझे नहीं बताना, and I have to avoid the doer, so I can make it in passive. And if we have a firm tone, for example, sometimes if you go to a public place, then you can see written that smoking is not allowed here. इस तरह के जुमले आपने पढ़े होंगे ना, ये फर्म टोन में होते हैं, एक ऑर्डर शो कर रहे होते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको इस तरह नहीं कहा जाता थोड़ा सा कि यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर, बल्कि उसको इस तरह कह दिया जाता है, आपको जो है वो इम्पर्सनली यानी कि इनडायरेक्टली कह दिया जाता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, पॉइंट आउट नहीं किया जाता. तो इस सेंस में भी हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं. सो वेयर वी कैन यूज़ पैसिव वॉइसेस व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन और शिफ्ट द फोकस ऑफ द एक्शन फ्रॉम द डूअर टू द रिसीवर, or when the doer is unknown, when we don't know the doer that who has performed the action, or the doer is unimportant to tell, and when we want to avoid naming the doer intentionally, हमें नहीं बताना है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं passive voice को. and when in a firm tone to tell the order, we can use passive voices. Coming to the structure of active voice sentence, as you can see that in active voice sentence the structure is subject, verb and object. As in simple present tense, as I have written an example here, my friend paints pictures, subject, verb and object. And in some sentences we have helping verb or auxiliary verb too, like subject, helping verb plus verb and then object. और किस तरह के sentences में हमारे पास affirmative sentences में helping verb और auxiliary verb होता है, in future simple, okay, or in continuous tenses and in perfect tenses also. So किस टेंस के अलावा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा हमारे पास
हर टेंस के सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है. सो व्हाट शुड बी द पैसिव वॉइस सेंटेंस? मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में डूअर एज अ सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में वो रिसीवर हो जाता है. रिसीवर एज अ सब्जेक्ट होता है, हम डूअर को रिसीवर की जगह पे ले जाते हैं, पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं. वी हैव टू इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ओके, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. एज यू कैन सी, सब्जेक्ट डूअर है एक्टिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट रिसीवर है. बट इन पैसिव वॉइस we have receiver as a subject in passive voice. Then be form of verb. What is be form of verb? You are well aware of it. In present tense, be form of verb is am. In past tense, be form of verb is was and were. In continuous tenses, be form of verb is being. And in perfect tenses, it is taken as a past participle, being. Okay? तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है. यू हैव टू रिमेंबर इट एंड कीप इन माइंड दैट बी फॉर्म ऑफ वर्ब हैज 4 टाइप्स इन प्रेजेंट टेंस, इज एम आर, पास्ट टेंस वाज वर, कंटिन्यूअस टेंसेस बीइंग, एंड इन परफेक्ट टेंसेस वी यूज बीइंग. Here are some points that you have to remember while converting active voice sentences into passive voice. So कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हों. जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे देन आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द टेंसेस दैट वी कैन नॉट मेक देम इन पैसिव सेंटेंसेस, जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते. कुछ टेंसेस ऐसे भी हैं जिनके पैसिव नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस में उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. अभी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में टेंस वाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी कि वो कौन से टेंसेस हैं जिनका हम पैसिव नहीं बनाते. बट कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी चाहिए, यू हैव टू कीप इन माइंड एंड एज यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन क्लास 7th ऑल्सो, सो यू हैव द नॉलेज अबाउट इट that first what we have to do when we start converting active voice into passive voice, we have to identify the doer, receiver and verb. What we have to do, we have to identify the doer. Yes students, what is the doer in the sentence? क्या आप सबने आइडेंटिफाई कर लिया है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो डूअर हमारा एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ही होगा. तो कौन सा है डूअर? माई फ्रेंड. माई फ्रेंड इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. एंड व्हाट इज द रिसीवर? ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर बोलूंगी आपके जहन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ओके, तो ऑब्जेक्ट इज पिक्चर्स. एंड व्हाट इज द वर्ब? यस, वर्ब इज पेंट. वेरी गुड. Then one more thing which I have to tell you that while converting active voice into passive voice, we must have a sentence having transitive verb. हमारे पास कौन सा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा हो. And what are transitive and intransitive verb? I hope you know well because you have learned about it in class 6. Transitive verbs requires an object to make complete sense. ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जब ही वो कंप्लीट सेंस देगा. बट इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस. आपको कुछ याद आया, कुछ जहन में आया कि मैंने क्या कहा है? आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद द एग्जाम्पल. मैं आपको मजीद बताती हूँ कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने सेंटेंस को सेंसिबल बनाने के लिए. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस अगेन. माई फ्रेंड पेंट्स पिक्चर्स. इसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें से पिक्चर्स को रिमूव कर दूंगी, माई फ्रेंड पेंट्स व्हाट, आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि वो क्या पेंट करती है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट सेंस देगा. बट इफ़ आई से शी गोज़ डेली, शी गोज़ टू ऑफिस डेली, इसमें जो है वो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट सेंस मिल रहा है आपको. बात समझ में आई? यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं भी होगा इन ट्रांजिटिव वर्ब में तो कंप्लीट सेंस मिल जाएगा, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए रिसीवर ऑफ द एक्शन ज़रूरी है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मस्ट है. देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके,
समझ में आई बात? कंप्लीट सेंस जब ही होगा। और ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में हमें किसका आंसर मिलता है? वॉट और हु का आंसर मिलता है। ठीक है, ये भी आपको पहले बताया था जब हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किए थे। तो जब भी हमारे पास सेंटेंस होगा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी हम उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। I go to school daily. We cannot convert it into passive voice. We cannot transform it because there is no object. Okay? Third point which you have to remember, that we have to interchange the position of subject and object while making active into passive and passive into active. What we have to do? We have to interchange the position. आपने देखा? We have interchanged or exchanged the positions of subject and object. Here the position of subject and object are interchanged, as you have seen. हमने इसकी positions को interchange कर दिया है. Next step, be form is used as an auxiliary verb followed by past participle. What you have to do? We have to use be form, as you can see in the structure. Subject or receiver of the action comes first in passive voice instead of the doer. Then be form of verb is used according to the tense. जिस tense में भी होगा उसी के according. Followed by past participle. It is compulsory, it is necessary, it is mandatory to use past participle in every passive sentence. पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो पास्ट पार्टिसिपल के अलावा एक्शन वर्ब की कोई और फॉर्म यूज नहीं होगी. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टेंस देन? फिर टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब सब सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस के एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी तो हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ड्यू टू और बिकॉज ऑफ द बी फॉर्म ऑफ वर्ब. बी फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से हमें क्या होगा? वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस इजीली. Okay students, and then we have to use by. By is mostly added after the verb. We have to use by in passive voice sentences, but it is not always used in passive voice sentences. By सबसे ज़्यादा यूज़ होता है passive voice sentences में when we have a doer of an action in a sentence. जब हमारे पास sentence में doer होता है, यानी कि कोई परफॉर्म करने वाला शख्स होता है, तो फिर हम उसके साथ बाय यूज़ करते हैं. बट व्हेन वी हैव अ थिंग, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम कोई और प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम विद भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस एसे इज़ रिटन विद ब्लू मार्कर. एसे इज़ रिटन तक तो पैसिव वॉइस था ना. अगर मुझे डूअर यूज़ करना होता, दिस एसे इज़ रिटन बाय मी, अगर मैं डूअर यूज़ करती तो मैं बाय प्रपोजिशन यूज़ करती. लेकिन यहाँ मैंने डूअर यूज़ नहीं किया, मैंने मार्कर की बात की है, तो मैं क्या करूँगी? द एसे इज़ रिटन विथ ब्लू मार्कर. मैंने प्रपोजिशन चेंज कर दिया है. ठीक है, तो इस चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो बाय ही यूज़ होगा. मोस्टली का मतलब ज़्यादातर बाय यूज़ होता है. आपको बहुत सारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बाय ही नज़र आएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बाय नहीं है तो सेंटेंस पैसिव में नहीं है. समटाइम्स वी डोंट मेंशन द डूअर. कभी ऐसा भी होता है कि हम डूअर को मेंशन ही नहीं करते, तो हम कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते और हम अपना सेंटेंस वर्ब पे ही एंड कर देते हैं. जैसे मैंने कहा मिस्टेक्स वर मेड, गलतियाँ हुई, तो इसमें मैंने डूअर को मेंशन ही नहीं किया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो मैंने अपना सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पार्टिसिपल पे ही एंड कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी यूज़ बाय तो इसका मतलब ये है कि हमें डूअर भी मेंशन करना है. देन डूअर आ जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. पैसिव वॉइस में डूअर आता है और फिर फुल स्टॉप. सो दिस इज़ all for today. I have told you what is voice. Voice is the form of verb which tells us whether the subject of a verb performs or receives the action. हमें इससे पता चलता है कि subject of a verb जो है, जो subject है वो action perform कर रहा है या receive कर रहा है. अगर subject action perform कर रहा है then the sentence is in active voice. और अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तो वो रिसीवर है, तो इसका मतलब कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है. बिकॉज इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है और हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को यूज़ कहाँ करते हैं. एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ. इफ़ आई से दैट ब्रांडेड क्लोथ्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बेचे जाते हैं. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू टेल द डूअर.
मुझे डूअर नहीं बताना, आई हैव टू अवॉइड द डूअर, और द डूअर इज़ अनइम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो हु सेल्स द ब्रांडेड क्लोथ्स देयर, मुझे नहीं पता, द डूअर इज़ अननोन। तो मैंने बस क्या बोला कि ब्रांडेड क्लोथ्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बेचे जाते हैं। और ये आपको एड्स में भी आपको पैसिव वॉइस का यूज़ नज़र आएगा बहुत सारे, या जो कि आपको जो है, आप देखिए शॉपिंग सेंटर्स के बाहर जाते हैं वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि मोस्टली इसी तरह लिखा होता है कि यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े बेचे जाते हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की रिपेयरिंग की जाती है, मरम्मत की जाती है, इस तरह के सेंटेंसेस, ये सारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पर खालिद साहब बेच रहे हैं, शकूर साहब बेच रहे हैं, अब्दुल शकूर साहब बेच रहे हैं, या कौन सेलिंग कर रहा है, कौन रिपेयरिंग कर रहा है, एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट कि कौन ये डूअर कौन है। वी आर फोकसिंग ऑन द एक्शन, हमारा फोकस किस चीज़ पे है, एक्शन पे है, ठीक है, या फिर रिसीवर पे, हमारी चीज़ पे है, तो फिर हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल दैट व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस, एंड आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रक्चर एंड you know, you are well aware of it, that in subject, in active voice the subject is the doer, then verb and then object, or in another case subject and then helping verb, then verb and then object, as I have told you। passive voice structure भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। In passive voice the subject is the receiver, not the doer, then be form of verb followed by past participle and then by and then object। Be form of verb is put according to the tense, as I have told you that there are 4 forms of be used in passive voice, okay। Then I have told you that by is mostly added after the verb in passive voice sentences when we want to mention the doer। Okay students, this is all for today, but I want to give you the homework, so you have to do exercise A। Yes students, on page number 18 of your book there is an exercise A, you have to use suitable prepositions in the given sentences। You have to choose, if you have the doer then you have to use by, और अगर doer नहीं है तो आप with और in भी use कर सकते हैं, and the explanation is also given here। In the passive voice the preposition by is used before the doer of an action, the preposition in is used instead of by with verbs of covering, the preposition with is used with the verbs of filling। ये explanation आपकी बहुत काम आएगी जब आप ये exercise करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, just you have to put by, with or in the given sentences, ठीक है। Note down the homework, do exercise A of unit 2 page number 18। I hope you have understood well what I have told you today। Inshallah, see you in the next class in which I will tell you how to convert active voice into passive voice। See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।